So let us begin our session for today, and welcome back to class. And I hope that you're all doing well. सब ठीक ठाक हैं, सब स्वस्थ हैं. You know, the situation out there is still not very conducive, is still not safe. तो मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अवॉइड कीजिए बाहर जाना. If it is too important, only then you should go outside. Otherwise, try and be at home as much as possible. घर ही पर रहिए, अपना रिलैक्स करिए और बाहर केवल बहुत इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो तभी जाइएगा. Okay, so we are going to begin our class for today. और गणेश, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? Ganesh, is my screen visible to you? Recording in progress. Let me see. Okay, fine. ठीक है. Thank you. Great. So we are going to move on and proceed on in our topic. We are discussing the chemistry of coordinate compounds और हम लोगों ने बहुत सारे बहुत important aspects को already cover कर लिया है. And उसमें से कई videos जो हैं वो already मेरे YouTube channel पर आपको मिल जाएंगे. So you can go ahead and look at those videos. My suggestion to you is don't stop studying. Examination or no examination, that's not very important. What is more important is that you should have thorough knowledge of the subject, which is probably the most important thing as of now. क्योंकि देखिए आगे चल करके कहीं पर भी जब आप अपने मार्क्स को क्लेम करेंगे, so you will also have to justify that the marks that you've got, you deserve every single mark that you've got. So इसीलिए सब्जेक्ट की नॉलेज होना और उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो आई सजेस्ट दैट यू कीप स्टडिंग एट योर एंड. इसीलिए हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं एंड वी नॉट स्टॉपिंग एट द मोमेंट. सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं एंड I hope that we will be able to, cover up some part, at least the structural isomerism part today, and then we will proceed to the stereoisomerism part at a later stage sometime. Just give me a minute, 1 second. Okay, so let's carry on in our discussion. Now, isomerism, broadly categorized into two categories. If you look at over here, you will see here, isomerism has been broadly categorized. Now, first of all, what is isomerism? What is isomerism? Can I see your hands so that I can unmute you and you can, answer this question? What is isomerism? या तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए या तो हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करूं. एंड आई वांट टू हियर फ्रॉम यू व्हाट यू नो अबाउट आइसोमेरिज्म. डेफिनेशन, केवल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अभी कि आइसोमेरिज्म की क्या परिभाषा है. जी, एनीवन, गो अहेड. ओके, स्नेहा मिश्रा, प्लीज गो अहेड. Sir, isomerism is defined as for the molecules having same molecular formula yet different structure or arrangements. Very good, very good. Two or more compounds having the same molecular formula but different structural arrangements. Okay, इसको लिख लीजिए सब लोग, आप लोग. I want all of you to write this down, that isomerism is defined as the phenomena. देखिए,
Isomerism is defined as the phenomena. Isomerism is defined as the phenomena wherein compounds have wherein compounds have the same molecular formula. Compounds have same molecular formula. Compounds have same molecular formula. Yet different structural arrangements. Compounds have the same molecular formula, yet different structural arrangements. Full stop. Such compounds are called isomers. 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 They are called isomers. And the phenomena is referred as, compounds are called isomers, and the phenomena, prakriya, and the phenomena is referred as isomerism. Phenomena is referred as isomerism. Phenomena is referred as isomerism. Okay. Now there is another very important aspect associated to this. So अभी हम लोगों ने इतनी बात करी है कि दो compounds यदि उनके same chemical formula है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, यानी उस केमिकल फॉर्मूला में, उस कंपाउंड के अंदर में जितने भी ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स अलग अलग तरीकों से अरेंज यदि होंगे, तो केमिकल फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन उनके अरेंजमेंट में परिवर्तन है, डिफरेंस है। और यदि अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स, एंड प्रक्रिया को, प्रोसेस को, फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स, the chemical and physical properties also become slightly different from each other. ये important बात है और ये जानने योग्य बात है. This is something important that you should know, that when compounds have different structural arrangements, it leads to different chemical and physical properties, and we will look at a few examples where we will see that difference in structural properties, structural arrangement is causing difference in the chemical and physical properties. So आगे इस बात को लिख लीजिएगा. Due to difference in their structural arrangement, due to difference in their structural arrangement, there is difference in their chemical and physical properties. There is difference in their chemical and physical properties. Difference in their chemical and physical properties. Okay. Now, so let's move forward now. अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो आइसोमेरिज्म है, this is the larger unit. आइसोमेरिज्म दो प्रकार की है. एक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, दिस इज ए. एंड दूसरा है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो वी हैव व्हाट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, one, and second we have what is known as stereoisomerism. So isomerism broadly categorized into structural isomerism and stereoisomerism, and thereafter structural isomerism is further subdivided into five types of structural isomerisms. We have ionization isomerism, hydrate isomerism,
coordination isomerism, linkage isomerism, and coordination position isomerism. While stereoisomerism is broadly categorized into geometrical isomerism and ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आप जब आगे चलेंगे तो देखेंगे हम लोग कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो फॉर 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है या फिर 6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का है. फिर हम 4 कोऑर्डिनेट में टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, और 6 कोऑर्डिनेट में यानी कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर में अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं. सो वी विल लुक एट ऑल ऑफ दैट इन डिटेल. And then of course we know we have studied and read about optical isomerism, how the whole concept of enantiomers, the D form, the L form, chiral center, mirror images, etc. ये सारे concepts जो हैं ये हम लोग optical isomerism के context में पढ़ेंगे. So once again, isomerism, what are isomers? Isomers are compounds having the same chemical formula but different structural arrangements of groups. Because of the difference in the structural arrangements, there are difference in chemical physical properties. तो isomers में आपस में chemical physical properties में थोड़ा difference होता है, और ये difference जो है वो structural arrangement की भिन्नता के कारण आता है. And then of course we have 2 types of isomerism, structural and stereo. And structural की ये 5 प्रकार हैं और stereo के 2 प्रकार हैं. Let's move forward. Now let's first talk about what is structural isomerism. Okay. और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये पहला है जिसको मैं चाहता हूं कि आप इसका ये जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने लिखा इसको मेहरबानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ नोट्स या footnotes which I have prepared for you. So I really want you to have these and I've tried to keep it as simple and as less worded as possible, but you need to have it. So what is ionization isomerism? Complex compounds that differ from each other with respect to the groups, ये important है, groups or ions which are present within and outside the coordination sphere. Say for example, मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन M है, और हमारे पास ये लिगेंड है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और ये लिगेंड है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है. जब इसका आयनाइजेशन होगा तो बनेगा M X होल 6 प्लस Y माइनस. ठीक है. सो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो हमारा जो पहला आयन है, इस पहले आयन का एक नाम है और इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स आयन. ये हम लोग ऑलरेडी इस बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं. इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको नाम दिया गया है सिंपल आयन. ओके. सो व्हेनेवर ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड an ionic complex compound will dissociate, it will produce a complex ion and a simple ion. ठीक. ये एक एग्जाम्पल है. ओके. दिस इज एग्जाम्पल. सो mx the whole 6y is outside. जब डिसोसिएशन होगा तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, ये सिंपल आयन बनेगा. नाउ let's take up another example. Okay. And I'm just only trying to make a point over here. अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा. Once again we have the central metal ion M. We have Y to the whole 6 and X is outside the coordination sphere. So जब इसका dissociation होगा तो ये बनेगा M Y to the whole 6 y to the whole 6 plus x minus. Okay. Now please see here, if you notice here, यहां पर ये जो हमारा m y whole 6 plus है, this is the complex ion,
एंड X माइनस जो है ये सिंपल आयन है. ओके, सो वी हैव My होल 6 plus, which is the complex ion, this is the complex ion, and X minus जो है ये हमारा simple ion है. Now if you watch here carefully, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक्चुअली दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में सेंट्रल मेटल आयन सेम है, दोनों में लिगेंड्स भी सेम है. यहाँ पर X है, यहाँ Y है, यहाँ पर भी X है, यहाँ पर भी Y है. इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली सेम है, लेकिन X और Y का अरेंजमेंट में फर्क हो गया. एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में X कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और एक में X कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू with respect to the group or ion which is present within the coordination sphere and outside the coordination sphere. So यहाँ पर X is inside the coordination sphere, Y is outside, और दूसरे में Y is inside and X is outside. और इन दोनों को हम combined तरीके से क्या बोलेंगे? They will be called ionization isomers. एक में जब हम ionization करेंगे तो Y as a simple ion produce हो जाएगा, और दूसरे में जब हम आयनाइजेशन करेंगे तो X एज अ सिंपल आयन प्रोड्यूस होकर चला जाएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है. सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रुप्स और आयंस व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स. इसका मतलब ये हुआ इन्हें हम आयनाइजेशन आइसोमर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आयनाइजेशन पर अलग अलग प्रकार के सिंपल आयंस प्रोड्यूस होते हैं. पहले वाले केस में पहले आइसोमर में Y is coming out as a simple ion, and in the second isomer X is coming as a simple ion. So 1 and 2 are ionization isomers. Phenomena is referred as ionization isomerism. Okay, let's go forward. अब यहां पर देखिए एग्जांपल्स हैं. ओके, एग्जांपल्स हैं. पहला एग्जांपल देखिएगा CONH3 होल 5 Br. CONH3 होल 5 Br. अब देखिए यहां पर इसमें ब्रोमाइड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और सल्फेट जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है. तो जब इस कंपाउंड A का डिसोसिएशन होगा तो सल्फेट naturally will be produced as a simple ion, while bromide, because it is present inside the coordination sphere, will not separate out as a simple ion, but it will remain part of the complex ion. So CONH3 whole 5 Br2 plus is the complex ion. Bromide ligand जो है वो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ है, सेपरेट आउट नहीं हुआ. और आप जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रोमाइड कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि डिसोसिएट या आयनाइज नहीं होता है. जबकि सल्फेट जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, यानी आयनाइजेशन स्फीयर का हिस्सा है, लिहाजा आयनाइजेशन पर वो सेपरेट आउट हो जाता है एज सल्फेट सिंपल आयन. नाउ इफ the solution of A, this is the compound A, the solution of A gives a white precipitate of barium sulfate solution confirming the presence of सल्फेट आयन. सो ये रिएक्शन देखिए, वो रिएक्शन यहां पर है, मैं यहां लिख दे रहा हूं रिएक्शन को, अगर आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सल्फेट आयन. बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस SO4 2 negative. We have बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सल्फेट आयन, और जब ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. ये डाउनवर्ड एरो इंडिकेट्स प्रेसिपिटेट. ओके, सो बेरियम क्लोराइड reacts with sulfate ion to produce white precipitate of barium sulfate. Now क्योंकि सल्फेट आयन एक सिंपल आयन के रूप में सेपरेट हो जा रहा है, इसीलिए हम बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त करेंगे यदि हम बेरियम क्लोराइड के साथ इस कंपाउंड को रिएक्ट करेंगे. सो दिस कंपाउंड A प्लस बेरियम क्लोराइड विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. ओके, ना ध्यान देने वाली बात है, दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस.
ब्रोमाइड आयनों के लिए टेस्टिंग के लिए हम इस कंपाउंड ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रोमाइड एक सिंपल आयन के रूप में सेपरेट नहीं हो रहा है। ब्रोमाइड एक सिंपल आयन के रूप में सेपरेट नहीं हो रहा है, इसीलिए ब्रोमाइड आयन के टेस्ट के लिए इस कंपाउंड का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सल्फेट रिमूव हो रहा है एज अ सिंपल आयन। अब देखिए दूसरे कंपाउंड में, कंपाउंड बी में, सल्फेट गोज इनसाइड, ब्रोमाइड गोज आउटसाइड, सो वी get bromide ion as simple ion. Okay, so the solution of B gives a light yellow precipitate with silver nitrate solution confirming the presence of bromide ion. अब इसका रिएक्शन देखिए क्या है। ये रिएक्शंस आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपको आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। सो वी हैव silver nitrate solution AgNO3 combining with the bromide simple ion which has been produced, तो हमको मिलेगा AgBr silver bromide, light yellow precipitate of silver bromide we will get. So silver bromide का टेस्ट, silver bromide precipitate हमको इसलिए मिलेगा क्योंकि ब्रोमाइड आयन सेपरेट आउट हो रहा है, और क्योंकि ब्रोमाइड आयन सेपरेट हो रहा है एज अ सिंपल आयन, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर ब्रोमाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। कंपाउंड बी को हम सल्फेट आयन के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कंपाउंड बी, ओके, एक सेकेंड, सो वी हैव कंपाउंड बी को यदि हम बेरियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे, थिंकिंग कि इसमें सल्फेट है तो हमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, तो हमको इसमें बेरियम सल्फेट BaSO4 का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। We will not get a precipitate of barium sulfate. Why? Because sulfate ion does not separate out as a simple ion. So ये जो कंपाउंड ए और कंपाउंड बी है, इन्हें हम आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। क्यों आयनाइजेशन आइसोमर्स? क्योंकि ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, जिनमें एक ग्रुप पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, दूसरा आयनाइजेशन स्फीयर में है। तो जो आयनाइजेशन स्फीयर में है वो एज अ सिंपल आयन निकल जाता है आयनाइजेशन के दौरान। दूसरे में जो आयनाइजेशन स्फीयर में था वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयनाइजेशन स्फीयर में चला गया। तो फॉर एग्जांपल यहां पर है सल्फेट आयन कंपाउंड ए में सिंपल आयन के रूप में निकल रहा है, और कंपाउंड बी में ब्रोमाइड एज अ सिंपल आयन के रूप में सेपरेट हो जा रहा है। So these are very important concepts which you need to understand. So compound A and compound B are called ionization isomers. Ionization isomers, because they differ from each other with respect to the simple ion which is produced with respect to the whole process of ionization. इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। You should have all these things, जितने explanations हैं ये भी हैं, और उसके बाद जो मैंने reactions देखे हैं, you should have these reactions. या तो आप लिखते चलिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, whichever is convenient for you. Okay, so that's one. This is ionization isomerism. Okay, let me do one thing. Let me give you an example. और आप अपने आप से, जिस तरह से मैंने इसका किया है, आप अपने आप से इस एग्जाम्पल को, ये मैं यहाँ टॉप पर लिख रहा हूँ, आई एम श्योर यू कैन सी इट। मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप रिएक्शंस लिख करके प्रूव कीजिए दैट दे आर ionization isomers of each other. Okay, रिवांशी is asking सर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स तो डिफरेंट हो गए। लिगेंड्स डिफरेंट कहाँ है रिवांशी? दोनों में ही ब्रोमाइड है और दोनों में सल्फेट है, केवल ब्रोमाइड और सल्फेट के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो गया। उसी डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट की वजह से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जनरेट होती है, और दोनों को हम आयनाइजेशन आइसोमर्स कह पाते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस इन लिगेंड, देयर लिगेंड्स रिमेन द सेम। ओके, नाउ सो वी हैव प्लैटिनम। इसको आप
मेरे साथ साथ उतारते चलिएगा। प्लैटिनम NH3 yep, thank you. NH3 whole 4 Cl2 and Br. ठीक, this compound and then we have इसी का ionization isomer platinum. So this is the ligand which remains the same, NH3 whole 4. अब पहले वाले में Cl अंदर था, दूसरे वाले में Br अंदर हो जाएगा. So Br2 square bracket close Cl2. इसको नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन. Sachin Singh sir, mx whole 5 y x and mx whole 6 y. Yes, yes. As long as the molecular formula remains the same, if there is different in arrangements on the basis of ionization, they can be referred as ionization isomers. एग्जाम्पल बी में 2Br होगा कि ओनली Br? इसके ऊपर अच्छा, ओके ओके. यहां देखिए आप, कोबाल्ट अगर +3 है, सल्फेट -2 है, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये सिंगल Br होगा. ठीक, ओके. इसको ये चेंज नोट कर लीजिएगा. कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सिंपली यहां पर सल्फेट -2, तो ये +1 एंड देन सिंगल Br -1. ओके, सो ये एग्जांपल आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, PTNH3 whole 4 Cl2 Br2 and PTNH3 whole 4 Br2 Cl2. Both are ionization isomers. Please prove that they are ionization isomers. Let me give you another example. जिस तरह से मैंने ये दोनों रिएक्शंस नीचे लिखे हैं, उसी तरह से आप ये दोनों एग्जांपल्स को भी अपने आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा. आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल. CO, that's cobalt, En whole twice Cl, SO4 and CO. इसको आप अपनी कॉपी में प्लीज बहुत केयरफुली उतारिएगा so that you can practice it in your free time. SO4 and Cl. ठीक है. सो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं. एक एग्जांपल मैंने करा दिया, दो आपको दे दिया है. प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली एंड राइट इट आउट. अपने आप बढ़िया तरीके से आप इसके रिएक्शंस को लिख लीजिएगा so that you can practice well. Let's move forward now. Let's move forward and let's go on to the next kind of isomerism, which is called hydrate isomerism. Hydrate isomerism. Now see here very carefully. Hydrate isomers are obtained when neutral ligands में mostly water ligand present within the coordination sphere is replaced with ligands present outside the coordination sphere. So water molecule coordination sphere के अंदर है, ये धीमे धीमे रिप्लेस होता है और बाहर वाला जो लिगेंड है वो उसकी जगह कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लेना शुरू करता है. सो हमारे पास एक कंपाउंड A ये है, Cr H2O whole 6 Cl. This is hexa aquo chromium 3 chloride. hexa aquo chromium 3 chloride. अब इसमें आप नोटिस करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, Cr2 whole 6 3 plus 3 Cl minus. ये कॉम्प्लेक्स आयन है हमारा और ये सिंपल आयन है. ये कंपाउंड ए है. अब देखिए क्या होगा.
इसका जो हाइड्रेट आइसोमर है कंपाउंड बी, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एक Cl अंदर आ जाएगा। तो अगर एक पानी की मॉलिक्यूल हटेगा वाटर लिगेंड तो CrH2O होल 5 हो जाएगा। बाहर Cl3 था, एक Cl अंदर आ जाएगा तो Cl हो जाएगा, तो CrH2O होल 5 Cl। अब देखिए बाहर Cl3 था, बचा Cl2 और बाहर एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, अब यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन आपके सामने देखिए बनेगा वो ये है CrH2O होल 5 Cl, ओके। अब 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस, ये यहां पर पहले Cl3 था तो 3 Cl माइनस था, अब 2 Cl बचा तो 2 Cl माइनस हो जाएगा। सो देखिए आप, ये सिंपल आयन धीमे धीमे इसका नंबर्स चेंज होना शुरू हो गया, बिकॉज the water ligand present inside the coordination sphere is being slowly replaced by the ligand present outside the coordination sphere. So naturally, the number of simple ligands produced will also go on changing. So यहाँ पर H2O whole 6 है, यहाँ H2O whole 5, एक Cl अंदर आ गया, तो H2O whole 5 Cl, तीन में से 2 Cl बचा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। Let's proceed. And then we have the compound C, which is also a hydrate isomer for them. अब देखिए यहां पर H2O whole 5 में से एक पानी का मॉलिक्यूल और हट गया तो H2O whole 4 हो गया। बाहर जो Cl2 था, अब एक Cl अंदर और आ गया तो वो अंदर Cl2 हो गया, बाहर सिंगल Cl हो गया एंड 2H2O। और अब जब ये हम कॉम्प्लेक्स आयन बनता हुआ देखेंगे तो वो होगा CrH2O whole 4 Cl2 प्लस प्लस Cl माइनस। यहां पर आपको साफ दिख रहा है there's only one chloride ion, so 3 chloride ions, फिर 2 chloride ion, फिर सिंगल क्लोराइड आयन, और यहां पर आकर की ये बात खत्म हो जाएगी। और आप देखिए ये तीनों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, बट दे आर 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। देखिए यहां पर भी 6 वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर भी 5 ये है और एक 6 ये है, यहां पर 4 ये है और 2 ये 6। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली Cl देखिए सबसे पहले वाले में यहां Cl3 है, यहां पर एक Cl अंदर चला गया, 2 Cl बाहर, तो Cl3 ये भी हो गया। अब 2 Cl अंदर, एक Cl बाहर, तो Cl3। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द केमिकल फॉर्मूला, बट देयर इज definite change in the arrangement of groups within and outside the coordination sphere। और क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जो कि रिप्लेस होता है, इसीलिए इसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। और पहले कंपाउंड का कलर वायलेट है, आपको दिख रहा है, दूसरे का कलर लाइट ग्रीन है, तीसरे का कलर डार्क ग्रीन है, इंडिकेटिंग दैट दीज आर 3 सेपरेट कंपाउंड्स बट ऑल 3 आर हाइड्रेट आइसोमर्स टू each other. So please note it down and take a screenshot. These are very, very important concepts. Let's go forward. Now, this third one is also very important, और मैंने partially आपके साथ ये तब डिस्कस किया था जिस समय हम लोगों ने ligands के nomenclature के बारे में पढ़ाई करी थी, when we were discussing about IUPAC nomenclature of coordinate compounds. Now, what is linkage isomerism? देखिए यहाँ पर नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं चाहता हूं कि जरा सा आप यहाँ नोटिस कीजिएगा एक मिनट के लिए। ये हमारा लीगेंड है NO2। NO2 लीगेंड में 2 एटम्स हैं, एक एटम है नाइट्रोजन, दूसरा एटम है ऑक्सीजन। बाय द वे दोनों एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए। सो द क्वेश्चन अराइजेस whether nitro ligand will be attached to the central metal ion via nitrogen or via oxygen. There are 2 options. There are 2 donor atoms in the same ligand, and the ligand has the choice to attach to the central metal ion either through the first donor atom or through the second donor atom. So हमारा नाइट्रो ligand है, यदि ये नाइट्रोजन द्वारा जुड़ा होगा, so ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का। यदि ये नाइट्रोजन द्वारा सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होगा तो हम इसको नाइट्रो लीगेंड कहते हैं, और यदि ये ऑक्सीजन डोनर एटम द्वारा सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होगा तो इसी लीगेंड का नाम हो जाएगा नाइट्रीटो। नाइट्रीटो। If it is attached via nitrogen, it will be called nitro ligand. If it is attached via oxygen, then it will be called nitrito ligand. And by the way, केवल नाम बदलता है,
क्योंकि डोनर एटम चेंज हो रहा है, लेकिन इसके चार्ज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि ये यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो दोनों यूनिट नेगेटिव होगा, यदि ये न्यूट्रल है तो दोनों न्यूट्रल रहेंगे, यदि ये पॉजिटिव है कैटायनिक लिगेंड है तो पॉजिटिव ही रहेंगे। देयर इज नो चेंज इन द चार्ज, देयर इज ओनली चेंज इन द डोनर एटम which is attaching to the central metal ion. Because of the change in the donor atom, there is a change in the name, और ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, ये हमारा लिगेंड है SCN, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो यदि सल्फर द्वारा जुड़ा होगा तो थायोसाइनेट कहलाएगा। थायो का मतलब ही होता है प्रेजेंस ऑफ सल्फर। और यदि ये SCN के नाइट्रोजन द्वारा सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होगा तो इसी को हम आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। इसका मतलब एक ऐसा सल्फर कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम का काम कर रहा है। आइसोथायो का मतलब ये है नाइट्रोजन इज द डोनर एटम। आइसो का मतलब नाइट्रोजन डोनर एटम है, आइसोथायो का मतलब सल्फर की प्रेजेंस में नाइट्रोजन डोनर एटम है। सो इसको आइसोथायोसाइनेट लिगेंड बोलेंगे। अब आप देखिए यहां पर या ये एक दो एग्जांपल्स मैंने यहां पर आपके लिए तैयार करके रखे हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 एंड द सेकेंड वन इज राइट अंडरनीथ, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। पहला एग्जांपल देखिए, CONH3O5 NO2Cl2, तो ये नाइट्रो लिगेंड है। देखिए यहां पर नाइट्रो, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3 क्यों होगा, 2 Cl है तो ये -2 हो जाएगा। नाइट्रो यूनिट नेगेटिव है, कोबाल्ट +3 है तो +3 -1 ओवरऑल हो जाएगा +2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड -2 आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, तब जाकर के ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पेंटामीन नाइट्रो, द नेम ऑफ द लिगेंड यूज्ड हियर इज नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और दूसरे में यदि ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा है तो हो जाएगा पेंटामीन नाइट्रीटो, नाइट्रीटो ONO है, ऑक्सीजन डोनर एटम है तो नाइट्रीटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सो दीज टू कंपाउंड्स, पहला कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। एक जगह नाइट्रोजन से जुड़ाव है सेंट्रल मेटल आयन का, एक जगह ऑक्सीजन से जुड़ाव है, तो इसको हम, इन दोनों को हम कहेंगे लिंकेज आइसोमर्स। They are called linkage isomers and the phenomena is referred as linkage isomerism. Linkage isomerism. Okay. So अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, CONH3O5 NO2 का स्ट्रक्चर बनाना हो, देखिए मैं यहीं पर बना रहा हूं तो थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा समझना भी। ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग इट राइट हियर फॉर यू, फॉर योर कन्वीनियंस। अगर आप बना सकते हैं अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। और अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं बना ही रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। सो वी हैव कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, वी हैव 1 2 3 4th bond, and of course we have the 5th bond, and we have the 6th bond. अब 5 अमीन है ना, पेंटामीन है, तो NH3 first, NH3 second, NH3 third, NH3 fourth, NH3 fifth, और उसके बाद ये हमारा लिगेंड है, इसको हम कह रहे हैं नाइट्रो लिगेंड। और नाइट्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेंट्रल मेटल आयन से नाइट्रोजन द्वारा जुड़ा हुआ है। इतना तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव Cl,
और क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है इसीलिए नॉन डायरेक्शनल है, कहीं पर भी आप बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारा पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, दिस इज पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब बिल्कुल ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी मैं यहां पर बना दे रहा हूं, and I hope that you will be able to draw it yourself now. So ये of course ये हमारा स्क्वायर बेस बन गया। Then we have the cobalt central metal ion, first, second, third, 4 equatorial bonds, and we have the first apical bond above the base and the second apical bond below the base. Once again, we have 5 amines, so NH3, 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 ओके। और अब नाइट्रो लिगेंड जो है वो अपने ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसको अब हम नाइट्रो ना बोल करके क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो। ONO से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नाइट्रीटो बोलेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव आवर फर्स्ट क्लोराइड एंड वी हैव द सेकेंड क्लोराइड। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड these both are referred as linkage isomers to each other. ये पहला कंपाउंड हो गया और ये दूसरा कंपाउंड है। ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं। एक जगह पर नाइट्रोजन द्वारा जुड़ा हुआ है, एक जगह नाइट्रो ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा हुआ है, तो एक केस में ये नाइट्रो और दूसरे में नाइट्रीटो कंपाउंड कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। सो दूसरा एग्जांपल है, इसको आप अपने आप खुद ही करने का प्रयास कीजिएगा। सचिन पूछ रहे हैं कि जो हमने नाइट्रो को हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा शो किया है। देखिए, बॉन्ड तो सारे कोऑर्डिनेट हैं, ये जो Cl जुड़ा हुआ है इसको छोड़ के जितने बॉन्ड्स हैं एक्चुअली में सब कोऑर्डिनेट्स हैं। मैंने इसको स्पेसिफिकली इसलिए शो किया है क्योंकि हम अभी फिलहाल खास तौर से इसी के अरेंजमेंट की और इसी के ज्वाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए जस्ट टू सॉर्ट ऑफ मेक दिस लुक स्पेशल मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अदरवाइज बॉन्ड तो सारे ही कोऑर्डिनेट है, ये टेक्निकली सारे ही बॉन्ड जो हैं ये कोऑर्डिनेट हैं, तो सभी को एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के रूप में शो करना चाहिए। ठीक, ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। Now we come to the third kind of isomerism, which is called rather the fourth type, and it's called coordination isomerism. Now, in a compound where both the cation and anion are complex species, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, देखिए आप कि अब से फॉर एग्जांपल ये देखिए यहां पर ये हमारा कैटायनिक पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायनिक पार्ट सिंपल आयन है। और ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यही है कि जो कैटायनिक पार्ट है या तो वो कॉम्प्लेक्स आयन होगा तो एनायनिक पार्ट सिंपल आयन हो जाएगा, या जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक है तो सिंपल आयन कैटायनिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल K4FeCN6, ओके, ये कॉमन एग्जांपल है। लेकिन कुछ हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऐसे हैं वेयर बोथ द कैटायन एंड एनायन आर complex species, both are complex species. ऐसे में क्या होता है that the position of ligands could be interchanged, position of ligands could be thus giving rise to coordination isomers. अब आप देखिए यहाँ पर CONH3(6), okay, and CrCN(6). अब आप देखिए यहाँ पर एक सेकंड के लिए, I want you to look here, which is a very important aspect here, क्योंकि ये एक नए प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी आपके सामने आया है। अब आप यहां देखिएगा
अमीन लिगेंड हमारा न्यूट्रल होता है, तो ये तो हमने कर दिया 0। और कोबाल्ट जो है वो हमारा होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो पहला पार्ट है हमारा, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये कैटायनिक है। +3 0 विल मेक इट +3, तो ये हो गया हमारा कैटायनिक पार्ट। इधर देखिए साइनाइड -6 हो जाएगा, क्योंकि एक साइनो के ऊपर -1 होता है, तो 6 पर -6 हो जाएगा। तो अगर ये वाला पार्ट इधर +3 है, तो ये वाला पार्ट -3 होना चाहिए, तो -6 साइनो लिगेंड पर है, क्रोमियम पर हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा +3 इधर -3 इधर से, -6 +3 विल मेक इट -3 एंड दिस इज +3। सो यहां पर जो कैटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। जस्ट लेट मी राइट इट हियर। सो -6 +3 इज -3 anionic part, and +3 and 0 will make it +3, which is the cationic part. So बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि cationic part और anionic part दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा जिसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं, तो लिगेंड्स का आपस में इंटरचेंज हो जाता है, और लिगेंड्स के इंटरचेंज के द्वारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनते हैं, और प्रोसेस को, फिनोमेना को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सो आप देखिए यहां पर पहले वाला, ये जो पहला वाला कंपाउंड है ए, इसमें कोबाल्ट के साथ अमीन जुड़ा हुआ है और क्रोमियम के साथ साइनो जुड़ा हुआ है। कंपाउंड बी में अब कोबाल्ट के साथ साइनो जुड़ा हुआ है और क्रोमियम के साथ अमीन जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट द ligand position has been exchanged, and now let's look at the charge on these complex species, a very important aspect. अब आप देखिएगा यहां पर, और मैं जो बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके चार्जेस को मैं यहां नीचे लिखूंगा। ये अमीन है ना, ये हो गया न्यूट्रल, और क्रोमियम के ऊपर चार्ज होगा +3, तो +3 and 0 will make it what? +3. Cyanide -6, कोबाल्ट +3, तो ये टोटल हो जाएगा -3। अब आप नोटिस करिएगा, पहले कोबाल्ट जो है अमीन के साथ जुड़ा था, कैटायनिक पार्ट था, और क्रोमियम साइनाइड के साथ जुड़ा था, एनायनिक पार्ट था। इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्रोमियम अब अमीन से जुड़ा हुआ है और कैटायनिक पार्ट है, और कोबाल्ट साइनो से जुड़ा हुआ है और वो एनायनिक पार्ट है। इन दोनों को, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी को, हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं, एंड द फिनोमेना इज रेफर्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो पहले का नाम हो जाएगा हेक्सामीन कोबाल्ट 3 स्पेस हेक्सासाइनो क्रोमेट 3। सो हेक्सामीन कोबाल्ट 3 एंड हेक्सासाइनो क्रोमेट 3। ये ध्यान रखिएगा, ये जो ATE सफिक्स जुड़ गया है वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज। और ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, then the central metal ion will get a suffix ATE, and if the complex ion is a cationic part, then the name of the central metal ion is just written simply as that. ठीक, सो हेक्सामीन कोबाल्ट 3, हेक्सासाइनो क्रोमेट 3, और इसका जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है उसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्सामीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3। पहले यहां कोबाल्ट सिंपल था, अब ये कोबाल्टेट हो गया, यहां क्रोमेट था, अब ये यहां पर क्रोमियम हो गया। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं, एंड द फिनोमेना इज रेफर्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा आपके सामने पूरा डिटेल में बना हुआ है, आप उसको ये देख सकते हैं। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्रोमियम पर +3 चार्ज है?
क्रोमियम पे +4 भी हो सकता है, और नहीं क्रोमियम पे +4 नहीं होता, क्रोमियम पे +6 होता है. क्रोमियम हैज 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 एंड +6, ट्राइवेलेंट एंड हेक्सावेलेंट. ओके, क्रोमियम पे +6 भी हो सकते हैं और कोबाल्ट पे +2. तो कैसे और क्यों नहीं? अच्छा, अब यहां पर आप देखिएगा, इधर देखिए, पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैं आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट डाउन ओवर हियर, ताकि ऊपर जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड ना हो जाए. सो मैं यहां देखिए ऊपर बना रहा हूं आपके लिए. इधर देखिएगा, right on top, CO, NH3, CO, NH3, whole 6, and then जो इसका दूसरा पार्ट है वो है Cr, Cn, whole 6. अब देखिए आप, कोबाल्ट का एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो है +3. क्रोमियम के 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +3 एंड +6. ओके, सो जो पहला वाला पार्ट है इसको आप देखिएगा, अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, ये हम सब जानते हैं, तो अमीन न्यूट्रल हो गया 0. और कोबाल्ट का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो वो ये +3 हो गया. देखिए, कोबाल्ट के कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं, बट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. सो कोबाल्ट एक्वायर्स ए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और हमारा अमीन जो है वो न्यूट्रल है. अब इस पूरे का जो चार्ज हो गया वो हो गया +3, और ये कैटायनिक पार्ट है. तो अगर कैटायनिक पार्ट +3 है तो एनायनिक पार्ट क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा. -3 होने के लिए देखिए, एक साइनों पर -1 होता है तो 6 साइनों पर -6 हो जाएगा. अब क्रोमियम में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ट्राइवेलेंट क्रोमियम हो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या हेक्सावेलेंट क्रोमियम होगा तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब इधर देखिए ध्यान से, अगर ये हेक्सावेलेंट क्रोमियम की तरह हमने ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? +6. और अगर ये +6 हो गया, ये -6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 0. और ये 0 नहीं हो सकता, इसको कितना होना चाहिए? -3. इसीलिए क्रोमियम हेक्सावेलेंट नहीं है. ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई. क्रोमियम कौन सा हो गया? क्रोमियम हो गया +3. तो जब क्रोमियम होगा +3 और साइनो -6 है, तब जाकर के ये -3 होगा और हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल स्टेट में हो पाएगा. सो इसीलिए ये वाला पार्ट मैंने टोटली हटा दिया. एंड दिस इज हाउ वी विल कम टू नो दैट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ऊपर लग रहा है और किस तरह से हो रहा है. ये कैलकुलेशन, ये मेंटल वर्किंग आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, इस बात को थोड़ा सा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा और कोई बात नहीं है. मतलब कि सर एलिमेंट्स के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ओ यस सचिन, आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पर ही सारे कैलकुलेशंस करने हैं. वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल होगा. अदरवाइज इन द नॉर्मल कोर्स वी आर ऑलवेज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इधर देखिएगा. ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. अब नॉर्मल कोर्स में हम जानते हैं कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है. निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये नॉर्मली हम जानते हैं. कार्बोनिल लिगेंड हमारा न्यूट्रल होता है, तो ये तो हो गया 0. अब अगर निकल को हमने ले लिया +2, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या हो जाना चाहिए? +2 होना चाहिए. मगर ये +2 ना होकर के 0 है. तो अगर ये पूरे के ऊपर 0 है, इसका मतलब हमारा निकल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ना होकर के इस कंपाउंड में 0 है. सो वी हैव टू डू कैलकुलेशंस टू सी what oxidation state has been used in a certain particular complex compound. In the normal course, nickel has +2 oxidation state, but in this compound, nickel is existing in the 0 oxidation state. And how do we know? क्योंकि हमारा overall जो complex compound उसके ऊपर charge 0 है. So calculation करके हमको पता लगाना पड़ेगा कि क्या oxidation state इस्तेमाल किया गया है. Normally हम stable oxidation states की ही बात करते हैं. ठीक, फाइन.
सो एक ये एग्जांपल आपके सामने है, दूसरा मैं एक पहले का पूरी वर्किंग मैंने कर दी, दूसरा आपके सामने है, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए so that you are able to do it. And then in the structural isomerism, this is the last one, and this is called coordination position isomerism. Now what is coordination position isomerism? बहुत ही सिंपल सी चीज को ध्यान से देखिएगा. This type of isomerism is exhibited by polynuclear complexes. ये पहली बात है. ये सिंपल बात. पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या है? वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर एक से अधिक सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, उन्हें हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं. एंड एज these are developed as a result of different placement of ligands. अब आप यहां जरा सा गौर कीजिएगा, इधर देखिए. पहले ये जो कंपाउंड ए है, इसको और कंपाउंड बी आपस में इनके केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, जिस वजह से ये दोनों पॉलीन्यूक्लियर है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे. देखिए यहां पर 4 अमीन इधर है, 2 अमीन इधर है, कुल मिला के कितने हो गए? 6 अमीन हो गए, और 2 Cl है. अभी फिलहाल क्या है? 4 अमीन एक साइड, 2 अमीन एक साइड, और दोनों Cl एक ही साइड है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया. इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर क्या होगा? 6 अमीन है ना, तो 3 इधर हो जाएं, 3 इधर हो जाएं, और 2 Cl में से एक Cl इधर हो जाए, एक Cl इधर हो जाए. इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ लिगेंड्स और ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं उनके पोजीशन को हमने चेंज कर दिया. सो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक प्राइमरी जो डिफरेंस है वो ये है दैट कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट्स इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस and coordination position isomers are generated only by the shifting in the position or arrangement of the ligands which are present. So पहला वाला अनसिमेट्रिकल है, दूसरा वाला सिमेट्रिकल है. नाम दोनों का सेम होगा, दोनों के नामों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल अरेंजमेंट बदल जाएगा. और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं, या इसके फिनोमेना को हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं. Okay, so this brings us to the end of structural arrangement, and the last one is stereoisomerism. और हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग कोऑर्डिनेशन स्टीरियोआइसोमेरिज्म हम शुरू करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ अपनी बात को हम लोग शुरू करेंगे. सो वी आर कमिंग टू एन एंड फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर जॉइनिंग. इट वाज वंडरफुल टू हैव यू. और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए. किसी तरह के कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अपने भेजते रहते हैं, एंड आई ट्राई एंड find time and keep replying to your queries, and I will be continuing to do that. It is my pleasure to remain in touch with all of you. So all the best to all of you, and if you have any queries as far as today's lecture is concerned, feel free to send me questions, and we will keep answering. Okay, thank you very much.